Acharya Shri Vijay Vallabh School, Pune brings to you a webinar on Creative Science Toys. Build your scientific approach. To introduce science to children in an interactive way, to create toys using various scientific concepts in order to educate children. By our speaker, Dr. Vidula Mahiskar. To learn how to make toys from trash, our chairman, Shri Subhashji Parmar, has inspired and guided us. To know more about the concepts of reuse and recycle, to make your own toy in a creative way. Let's begin with our today's interesting webinar. Good morning and a warm welcome to one and all. I, Annie Swamikan, on behalf of Acharya Shri Vijay Vallabh School, welcome you all for today's Sunday hour with our eminent guest, Dr. Vidula Mahiskar ma'am, on the topic Creative Science Toys. Build your scientific approach. We at Acharya Shri Vijay Vallabh School, with the inspiration and guidance from our chairman, Shri Subhashji Parmar sir, and members of the Education Committee, have organized this webinar. Science toys are the perfect way to introduce kids to a whole new world of exploration of the world around them. Whether you're looking for a toy that develops an existing hobby or that allows your child to experience something new, there is a science behind science-based toys that they are sure to love. So, everyone, let's be ready for today's interesting webinar. Now, our principal, Mrs. Jacinta Manuel ma'am, will brief us about our school. Over to you, ma'am. Good morning to one and all. It's my pleasure to welcome you all on this Sunday morning for a webinar on creative science toys by our eminent speaker, Dr. Vidula Mahiskar. Nowadays, as the time is changing, children have become more sharper and smart. They not only clever in academics, but also have a polished and brighter approach towards scientific attitude. They are in constant process of better innovations with a glitch of science, and considering all these liabilities, we at Acharya Shri Vijay Vallabh School help students by providing a scientific platform through various activities, webinars, and practical workshops, so that these scientific toys help them build their interests and be a source of entertainment. Science-based toys are a great way to teach students basics of scientific principles and also help the students for problem-solving skills, develop their fine and gross motor skills, and nurtures their creativity and imagination. I heartily thank our chairman, Shri Subhashji Parmar sir, who have always been a pillar of support. With his encouragement and help, our school will reach the pinnacle of success in all our ventures. Today, through this webinar, let us explore more about the world around them. Thank you. Over to you, Annie. Thank you, ma'am. Today, we have in our midst an eminent personality, Dr. Vidula Mahiskar ma'am. Ma'am has done her PhD in immunology from Haskell Institute, Mumbai. She did her postdoctoral fellowship at Stanford University. She works to make science and maths teaching more meaningful through activities. She has worked for 11 years with Padma Shri Arvind Gupta at Ayuka's Science Center and has conducted over 1,000 hand-on workshops in India and abroad for children, for teachers, parents, to make science models and toys using simple everyday material. Currently, she works as a consultant at Garware Bal Bhavan
which is a playground and recreational center near Saraswat. She also runs an activities center where she integrates hand-on activities with interdisciplinary education. We are indeed very fortunate that you're with us this morning, ma'am, to share your views on this wonderful topic, creative science toys. With this, I hand over the session to Dr. Vidula, ma'am, for her further demonstration and her views. Over to you, ma'am. Thank you very much. Can everybody hear me well? Thank you, Jacinta ma'am and Annie, for a great start to this session. And since this is January, I'll take the opportunity and wish everybody a very happy new year. I hope you have a very healthy and peaceful new year. And we get to do many hands-on activities, not just online and offline as well. So let me begin. So today's session, for first half an hour, I am going to show you some toys that you can make at home. And since everybody is at home and at least for a month more, and hopefully your schools will reopen soon, I'm going to show you things that you can make out of everyday material. So you don't have to buy anything. You simply have to collect stuff from your home and come up with a very genius science toy. Most of the toys have amazing amount of science, but since I have just half an hour today, I will not delve into too much of science. Let me just show you what are possibilities of using everyday material today. And then eventually you can always Google and find out more science and maths behind it. But even though, just remember that even though the toys look very simple, the simpler the toy, the more elegant is the science. That is what you should always remember. At the end of the session, I will welcome questions from you and we will answer. So let's begin. Since paper is the most simple and everyday material that you can find, let's see what are the toys that we can make out of paper. You don't have to write down anything today, because everything that I will show you today has been documented well on two websites. First is arvindguptatoys.com. If you want, I will write down the names of these two websites in the description later. And the second one is the website of Karware Balmo. It's the thing that so both of these websites have their own YouTube channels. So you can go to those channels and look at the videos. Every toy has been documented well. So just sit back and relax as if aap koi circus dekh rahe ho. So just enjoy. Today is Sunday, so have fun. So Jacinta ma'am, please tell me, can you just remind me 5 minutes before I have to finish? Then I will, so that I don't have to keep track of time. Then I will wind. Okay? Yes, ma'am, sure. Thank you, Jacinta ma'am. Okay, so the first toy that we are going to do is out of paper. I have taken a colored paper here. It's a paper strip. You don't have to worry about having colored paper. Take just any paper, not just your notebook paper, because वो बहुत पतला होता है और उससे ये हेलीकॉप्टर अच्छा काम नहीं करेगा. So you just take any elongated paper like this. Imagine it divided into 3 parts. The first 1/3 part you have to cut horizontally like this, and 2/3 part you have to cut from the sides. 1/3 from this side and 1/3 from other side. How would you fold it? आपने first fold ऐसा करना है, so that now, or the second fold you fold over like this. Fine. और नीचे से आपने थोड़ा सा fold ऊपर करना है, and you have to shape these two blades of the helicopter in a Y. अगर आपने ऐसे छोड़ोगे ना, तो you will see that it will make rounds and fall down. You might have seen so many trees with their seeds have some kind of wings, and then they can just run off with their wings like this. And larger the tree, बेटर आर द विंग्स. क्योंकि जितना बड़ा पेड़ है तो ऐसे भी तो नहीं हो सकता कि उसका बीज जो है तो उसके नीचे गिर गया. सो देयर विल बी लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर न्यूट्रिशन एंड सनलाइट. तो जितना बड़ा पेड़ है उसका बीज उतना दूर जाके गिरना चाहिए. सो द बिगर द ट्री इट विल हैव विंग्स सो दैट द सीड्स कैन गो फार एंड अवे, और वहां जाके वो पनप सकता है. What are the different variations you can do with just this simple strip of paper? First of all, आपने जो ये वाई किया है, ये अभी आपने अगर ऊपर से देखा तो ये क्लॉकवाइज घूमे. क्लॉकवाइज मेरे लिए और आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज. हाँ, तो व्हाट विल यू हैव टू डू टू लेट इट गो फ्रॉम क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज इज दैट यू सिंपली हैव टू शिफ्ट दिस. अगर ये ब्लेड आपने यहाँ से वहां किया तो अभी ये क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज चलने लगेगा.
This is the same toy that we use at the Bal Bhavan for first graders and 12th graders. For older kids, this is law of conservation of angular momentum. छोटे बच्चों के लिए हेलीकॉप्टर है. अगर आप थर्ड फ्लोर पे रह रहे हो या फोर्थ फ्लोर पे रह रहे हो, आपने बहुत सारी कलरफुल हेलीकॉप्टर जैसे कि और एक साथ छोड़े तो बहुत बढ़िया दिखता है. हाँ, so first thing you can change in this helicopter is the direction of rotation. It can go from clockwise to anti-clockwise. It can also change the speed. Okay, और अगर स्पीड बदलना है तो आपको क्या करना है? अगर आपके पास ये हेलीकॉप्टर पेपर है तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन नाउ सिंस आई हैव लेस टाइम आई विल शो. हाँ, तो जो हेलीकॉप्टर का ब्लेड आपने यहाँ काटा है ना, उससे थोड़ा लंबा काटना है. Cut it slightly longer. Longer the blade of the helicopter, slower it comes down. हाँ, तो देखो अगर मैंने ये हेलीकॉप्टर बनाया ऐसे, it's the same paper that I use, just different colors so that you can know. अगर ये अभी ये देखो दो हेलीकॉप्टर्स मेरे पास है, एक शॉर्टर ब्लेड का है और एक लंबे ब्लेड का है. अगर ये आपने छोड़ा तो you will realize that this helicopter comes down fast like this. हाँ, और ये जो हेलीकॉप्टर है ना, ये बहुत स्लो धीरे धीरे नीचे आएगा. सो आपने बस ऐसे छोड़ना है और ये बहुत अच्छे से घूमते घूमते नीचे आएगा. सो दैट इज वन थिंग यू कैन डू. आपने और एक चीज हम बना सकते हैं, वो एक दूसरा काइंड ऑफ हेलीकॉप्टर है. दिस इज अ स्टैंडिंग हेलीकॉप्टर. लेट्स सी इफ वी कैन मेक अ स्लीपिंग हेलीकॉप्टर. आज संडे है, आप सबको लेजी, यू टेंड टू बी लेजी, इजंट इट? I tend to be lazy too. So let's make a helicopter that doesn't come vertically but comes horizontally. Ma'am, yes. Excuse me, ma'am. Yeah. Can you go a little slow because our children, they have to understand properly. Na? I think you're Okay. a little fast. Huh? So, Fine. so children, one more thing. Children, you also can try this along with ma'am. No. Avelina, No? ma'am, no. I don't No? want them to try. Yes. Okay, no. okay. I have talked. I did speak to Jacinta, ma'am, because since everything is documented, I want to show them maximum Okay. number of toys Fine, so that ma'am. they will be able to do it later. Fine, अभी ma'am, उन्होंने fine. बिल्कुल करना नहीं. Okay. So just watch, children. Just watch. Yes. It just sit back and relax. Okay. Okay. क्या और इसमें तो डिफिकल्ट नहीं है. एंड द थिंग इज एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड. इसलिए मैंने ये जो दो वेबसाइट्स बताए हैं, ये ध्यान में रखना. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखूंगी. 3000 toys have been documented in the form of videos and photographs. Don't worry. Okay, Don't ma'am. worry. Okay. Yeah. Okay. तो अगर आपने स्लीपिंग हेलीकॉप्टर करना है तो ये करना है कि थिन स्ट्रिप लीजिए. हमने जैसे अभी 3 कट्स दिए थे, we are going to make just 2 cuts now. One like this and one from the bottom. You can see it well. So now all you have to do is tangle these 2 slips ऐसे अंदर से. So now you can see this becomes like a fish. Most of the fish are swimming, right? But we can make a flying fish now. So अगर हमने ऐसे fish पकड़ा और फेंका ना, तो you will see it will come down, but it looks like a helicopter, right? Y-shaped blades है, लेकिन ये vertically नहीं आएगा. This is a very sophisticated principle in physics called Bernoulli's principle, जिसकी वजह से ये horizontal होता है. So this is the blades that are going to let it spin, or because of this thing which is not aerodynamic now and it's quite fat. If you think this like a fish, you have to taper it slightly, but not make it into a bangda. Keep it into a pomfret so that it is nice and fat. और अगर अभी आएगा ना, it will come spinning but horizontally like this, not like this, right? A simple small paper will let you experiment with so many things. Now let's do something else. Let's do something on pets and insects. These are 2 things that I love. So I always start with toys that involve pets. So this is a cat. आपने अगर बहुत सारे बच्चों के घर में पेट्स हो गए, the 2 most favorite pets are dogs and cats. तो let's see, we'll make 2 simple toys. हाँ, तो ये है एक कैट. ये कैट सिंपल A4 शीट से बना है. इसमें जाड़ा पेपर नहीं लेना है, the kind that we use for the helicopter. वैसे नहीं. हाँ, ये पतला पेपर है. एंड प्लीज यूज रीयूज. देखिए मैंने यूज A4 लिया है जो 1 sided प्लेन था, उससे ये बना है. नेवर कट. इफ इट इज पॉसिबल टू यूज अ रिसाइकल्ड पेपर, यूज अ रिसाइकल्ड पेपर. कभी नया पेपर कट नहीं करना है. हाँ, because we have to, the most important thing now is to take care of our earth. तो प्लास्टिक कम करना है, रीयूज करना है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है. Okay, so now how big should this cat should be? About the size of your palm.
आपके पाम की साइज की एक कैट बनाना है, उसकी बड़ी सी पूंछ बनाओ, उसको नाम दो, कोई भी अच्छे से कलर करो। मुझे अच्छा कलर करना नहीं आता है, इसलिए आई हैव जस्ट ड्रॉन इट, आई हैवंट कलर्ड इट। लेकिन जो ध्यान में रखना है दैट द लेग्स हैव टू बी इन द सेम प्लेन, और आगे के दो और पीछे के दो चिपके हुए होने चाहिए। एंड देन यू सिंपली मेक 2 स्लिट्स एंड फोल्ड द लेग्स। कैसे? 1 आगे, एक पीछे, एक आगे, एक पीछे। So if you see, I'll show you from the bottom view. The bottom view looks like this, and this is the top view. हाँ, तो ये है आपकी cat जो actually can sit like this. हाँ, अभी if you know 2 things of a cat, first of all it has great night vision because उसके pupils बहुत adapted है लो लाइट के लिए। और दूसरी चीज है, अगर वो कोई भी सपोज 3 और 5 फीट से जंप करे तो वो कैसे भी ओरिएंटेशन में जंप करे, इट विल ऑलवेज लैंड ऑन इट्स फीट। ये उसका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन हम ये एक फिजिकल टॉय से डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ कैट, जस्ट बिकॉज द वे वी हैव फोल्डेड द लेग्स, क्या होगा, आप कैसे भी इसको छोड़ो ये हमेशा पैर पे गिरेगी। बिकॉज द काइंड ऑफ विंग्स दैट वी हैव मेड, यू सिंपली हैव टू ड्रॉप इट एंड यू विल सी कि अगर आपने उसको उठाया तो ये क्या करेगी, एक अगर आप ऐसे ड्रॉप करोगे ये टम्बल लेगी एयर में और इट विल ऑलवेज लैंड ऑन इट्स फीट। कितना सिंपल है ये टॉय, आप इसको जरूर बना सकते। दिस इज द कैट दैट ऑलवेज फॉल्स ऑन इट्स फीट। दूसरा हम बनाएंगे एक कुत्ता, हाँ, द ट्रॉटिंग डॉग, द डॉग्स ऑलवेज लाइक टू ट्रॉट, लाइक उसके लिए भी आपको एक सिंपल A4 लेना है। देखिए साइज ऑफ द पाम, ये सिंपल सिंगल साइडेड A4 से है। मैंने अभी ये ड्रॉ करके रखा है। यू डिवाइड द width into 3 parts and length also into 3 parts, एंड आपको ऐसे कट करना है। ये 2 लाइंस कट करनी है और ये 2 लाइंस कट करनी है। I'll just show you, I have a scissor here. हाँ, तो ये ऐसे कट करना है। हाँ, ऐसे ये लाइन सारे कट कर लेने। और what you do is, देखिए ऐसे कट होगा तो आगे का मैंने एक साइड बीच का टेपर करा है बिकॉज आई वांट टू मेक इट इनटू अ टेल, और जो फ्रंट साइड है ना उसमें थोड़े ऐसे कान कट करे हैं सो दैट इट डजंट काइंड ऑफ प्ले एनी रोल इनटू द वर्किंग ऑफ दिस टॉय। लेकिन ये दिखता है कुत्ते जैसा, देखिए एक छोटा सा कुत्ता हो गया जिसे 2 कान है और ऐसे। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ये जो 2 नीचे के साइड्स है ना, दे हैव बीन कट इनटू अ स्लैंट लाइक दिस। दिस विल हेल्प द डॉग टू ट्रॉट। तो आपने 2 पैर नीचे करने एंड यू टेक एनी इंक्लाइन एनी सरफेस लाइक दिस, और इस पर अगर आप उसको रखेंगे ना सो इट विल ट्रॉट डाउन, एकदम नीचे एकदम बढ़िया चलते आएगा। देखिए अगर इसने टम्बल किया तो क्या है, see it is very important, the physics behind this toy is amazing। क्या करना है, हमने ये जो स्लांट करे ना उसके वजह से ये ऐसे ट्रॉट करके आएगा। if these feet are too back it will fall on its face। अगर ये बहुत आगे है तो ये चलेगा नहीं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये करके देखना है। हम लोग ने ये वीडियो व्हाट्सएप पे बहुत बार देखा है ना, दिस इज द मोस्ट famous toy on WhatsApp these days, but not many people have tried it। The most important thing is use your hands and head well। इसके वजह से आपको सिंपल टॉयज विद सिंपल एवरीडे मटेरियल करने को आएगा। देखिए ऐसे चलते चलते नीचे आएगा। द थिंग इज इट शुड नॉट टम्बल एंड इट शुड नॉट स्लिप। स्लिप भी नहीं करना चाहिए, ऐसे ट्रॉट करके आना चाहिए। सो दिस इज अ डॉग दैट यू कैन मेक। अनदर थिंग यू कैन मेक विद अ सिंपल मैचबॉक्स is a walking matchbox। अगेन आई सेड जस्ट लाइक आई सेड, इसमें फिजिक्स बहुत बढ़िया है। इसमें ना हमने 2 चैनल ऐसे करे हैं ये थ्रेड लेके के दे आर एट अ स्लांट। अगर मैंने ये खोला तो आपको दिखेगा कि इसके जो बॉक्स के अंदर थ्रेड्स है दे आर एट अ स्लांट लाइक। इसमें हमने क्या करा है कि यहाँ से एक सुई में धागा पिरोया है। दिस इज अ स्लाइटली जाड़ा थ्रेड। हाँ, तो उसमें सुई से धागा पिरो के सुई यहाँ से निकाला है। यू टर्न इट अराउंड, गेट इट आउट फ्रॉम हियर, देन अगेन पुश इट इन फ्रॉम हियर एंड आउट फ्रॉम हियर। इसकी वजह से अंदर जो धागा है उसका एक चैनल बनेगा। द चैनल्स दैट आर एट एन एंगल। पैरेलल चैनल से ये काम नहीं चलेगा, पैरेलल पे करके देखो, बट दीज आर एट एन एंगल लाइक दिस। तो अगर मैंने ये मैच बॉक्स ऐसे पकड़ा तो सी यू कैन मेक अ वेरी ब्यूटीफुल। सी फ्रिक्शन इज समटाइम्स गुड एंड समटाइम्स इट्स नॉट गुड। When you want to have something in motion, then friction is not good। उसके तभी आप lubricant यूज करते हो, ball bearings यूज करते हो, लेकिन कभी कभी फ्रिक्शन अच्छा भी होता है। Like for example, when we walk, हमारे शूज स्लिपरी होने से काम नहीं चलता, उसमें फ्रिक्शन अच्छा है। That is the only time the shoe can actually stay put on the ground। हाँ,
तो इसके लिए इसमें फ्रिक्शन और स्लिप का बहुत अच्छा यूज है। तो देखिए अगर मैंने ये हाथ हिलाया तो यू गेट अ नाइस वॉकिंग मैच बॉक्स लाइक दिस। ये सिर्फ एंगल की ओर चलेगा, इफ नॉट we'll just get it back and it will start walking again. सिर्फ ये हाथ हिलाना। To make this into a more creative toy, what you can do is हमने ऐसे सिकाड़ा बनाया। सिकाड़ा is a kind of an insect, जो ये एक ओरिगामी का सिकाड़ा है। And if you again I said it's on the website also, but हाँ आपने अगर कोई नेट पे भी देखा कि ओरिगामी सिकाड़ा, तो इससे वेरी सिंपल सा फोल्ड है। लेकिन आपने अगर यहाँ देखा तो यहाँ दो एंगल्स जैसे दिखते हैं आपको सिकाड़ा के। हाँ, तो ये एंगल में अगर हमने थ्रेड पिरोया, बिकॉज दे आर हॉलो राइट, इट्स जस्ट अ फोल्ड, तो वो एंगल में अगर हमने धागा पिरोया तो वी कैन हैव द सेम, द मैच बॉक्स का ही प्रिंसिपल से एक सिकाड़ा हम चढ़ने वाला बना सकते हैं। देखिए इस सिकाड़ा ऊपर चढ़ेगा, इट्स जस्ट स्लिप एंड गो, स्लिप एंड गो। तो अगेन वही एंगल पे ही वो चलेगा, अगर नहीं तो हमको वापस वो नीचे लाना पड़ेगा, अगर नीचे लाए तो वापस वो ऊपर चलना चालू करेगा। हाँ, तो ये एक ओरिगामी सिकाड़ा है जो ऊपर चल सकता है। नेक्स्ट टॉय दैट आई वांट टू शो यू इज अगेन मेड आउट ऑफ पेंसिल। आई वांट टू शो यू एज मेनी टॉयज एज पॉसिबल, कि जो आप घर में जो दिखता है उससे आप बना सकते हैं। हाँ, तो ये एक अच्छा मैं बाद में दिखाती हूँ। ये एक पेंसिल है। दिस इज अ टॉय दैट हैज बीन मेड फॉर पास्ट 80 years, 80 to 100 years। पहले इसमें कोई बैम्बू स्टिक और फैमिली फैन होता था। दिस इज अ पेंसिल that has a spinning fan on top। और दिस इज कंप्लीटली नॉन ट्रिवियल फिजिक्स, बहुत बढ़िया फिजिक्स है इसमें। इसमें 6 मेजर रिसर्च पेपर्स लिखे गए। हाँ, रिचर्ड फाइनमैन हु वाज अ नोबेल अवार्ड विनिंग फिजिसिस्ट रोट अ पेपर ऑन दिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉय है जो जिसमें फिजिक्स बहुत है, लेकिन इट डजंट प्रिवेंट अस फ्रॉम मेकिंग दिस टॉय। हम इससे खेल तो जरूर सकते हैं। तो पहले इसको बाम्बू यूज करते थे, यहाँ हमने पेंसिल विद अ रबर एंड ऐसा यूज किया। देन विद सिंपल पिन हमने एक ऐसा बीच में बड़ा होल छेद जो फैन है उसमें वो इसमें घुसाया जो इसमें इजीली इट कैन स्पिन। हाँ, ये काला चीज है वो स्लीपर चप्पल या अपने इरेजर का रबर है। इट इज बिकॉज कि ये जो फैन का जो होल है वो पिन के हेड से तो बड़ा है, तो फैन विल टेंड टू फॉल ऑफ, सो ये स्टॉपर का काम करेगा। अगर अभी ये फैन को दिस एक्चुअली टर्न्स वाइब्रेशंस इनटू अ स्पिनिंग मोशन। तो वाइब्रेशंस कैसे क्रिएट करते हैं एक पेंसिल में? हमने अगर इस पेंसिल पे बैंग किया तो देखिए बहुत बढ़िया ये फैन घूमेगी। इसमें हमने फूका नहीं है, कुछ नहीं, इट्स अ सिंपल वाइब्रेशंस क्रिएटेड इन द पेंसिल दैट आर ट्रांसमिटेड टू द पिन एंड द फैन कैन स्पिन। There are many ways to get this toy to work. हाँ, सबसे पहले तो हमने बैंग करके, your idea is to create vibrations in the pencil, that's all। तो हमने ये बैंग करके किया। Another way to do it is, यहाँ अगर आप देखो तो मैंने ऐसे V shape के notches करे। You can either use a cutter to do this, or there is something called as a triangular file in a carpenter's bag। तो उससे घिस के भी आप कर सकते हैं। And this is an old refill. The moment I rub this refill on these notches, something amazing happens. Vibrations are created in the pencil and the fan spins। And third thing, the way you can get this fan to work is अगर आपने कंघी, the comb that you have, if you play it like a violin, again vibrations are created in the pencil and the fan spins। There are 2 or 3 more ways to get this fan to spin. Let's see if you can do it। I'll also give you my email at the end, and you can write to me if you can find more ways than the 3 that I have described right now। Please write to me। तो ये हो गया। अगर आपके पास पेंसिल भी नहीं तो ये आप खिलौना कैसे कर सकते हैं? तो अभी एक फैन है जिसमें होल पंच्ड है और ये एक सिंपल सा थ्रेड है जो इसमें डाला है। तो इफ आई टेक दिस थिंग, अगर मैंने इसे पकड़ा इसको, अगर ये मैंने सिर्फ इसमें उंगली में पकड़ा तो देखिए, हाँ इसमें धागा पिरोना है ये होल में से, एंड यू होल्ड दिस इन लाइक दिस। हाँ, अगर आपको दिखा है, एंड देन यू जस्ट प्ले। देखिए अगर मैंने इसको खाली प्लग भी किया तो कितना बढ़िया ये फैन घूमता है, देखिए जोर से घूमता है। तो द आइडिया इज टू क्रिएट वाइब्रेशंस। आप कैसे क्रिएट करो, आपकी मर्जी। क्या लगता है इसमें? सिर्फ एक ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड का रेक्टेंगुलर फैन, इट कुड बी सर्कुलर, इट कुड बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एनीथिंग दैट यू कैन फाइंड द सेंटर ऑफ, और एक धागा लगता है और कुछ नहीं, जस्ट प्लग इट। जैसे आप एक तारा बजा रहे और आपका फैन घूम रहा है। So try to make this toy as well। हाँ,
और एक खिलौना हम बना सकते हैं, वो है सम सेंटर ऑफ ग्रेविटी टॉयज। हाँ, ये एक टूकान है। इफ यू हैव सीन दिस बर्ड टूकान, टूकान इज अ ह्यूज बर्ड, जस्ट लाइक प्रोबेबली हमारे यहाँ एक बड़ी बीक वाला कौन रहता है, हॉर्नबिल। हाँ, इफ यू हैव सीन अ हॉर्नबिल, ये हॉर्नबिल और टूकान ऐसे birds हैं, they have a huge beak, so they tend to kind of have a very skewed center of gravity. तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अगर मैंने एक कार्डशीट का टूकन बनाया ऐसे, you draw it, हाँ, and see to it that it has a long beak, and if you want to have your pet toucan that can actually perch on your finger, तो अगर आप ऐसे होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो ये रहेगा नहीं, क्योंकि इसकी बीक इज वेरी ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर इसको हमने अपने फिंगर पे पर्च करना है तो व्हाट वी विल हैव टू डू इज, ये साइड से हमको कोई ऐसे वेट लगाना पड़ेगा, काउंटर वेट, क्योंकि ये साइड गिर रहा है, तो ये साइड लगाने के लिए वी हैव टू अटैच सम काउंटर वेट हियर। तो उसके लिए व्हाट वी हैव डन इज, दिस इज अ बंच ऑफ पेपर पिन्स। हाँ, तो ये पेपर पिन्स हमने यहाँ से एक होल करा है और इसमें ये पेपर पिन्स लगा दी। Now if I try to perch it on your finger, देखिए कितना बढ़िया से ये खड़ा रहेगा अच्छे से। तो ये आपका पेट टूकान हो गया। इफ यू wherever you wanted to stand, वो खड़ा रहेगा। देखिए अभी मेरे पास एक स्केच पेन है, स्केच पेन पर भी खड़ा रहेगा। कहीं पे भी आप अगर इसको खड़ा करना चाहो, it will come and talk to you and sit with you। यही प्रिंसिपल लेके हम एक जोकर भी बना सकते हैं। हाँ, आपने सबने सर्कस देखा होगा। फॉर पास्ट 2 years यू डिडंट गेट अ चांस टू गो टू सर्कस, राइट, क्योंकि अभी कोरोना चालू है। तो व्हाई नॉट मेक अ सर्कस एट होम, लेट अस मेक जोकर दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स हेड स्टैंड करने वाला जोकर बना सकते हैं। इसके लिए हमने ऐसे जोकर बनाया, और क्या करिए खाली कि ये जोकर के आर्म्स है ना, वो बहुत बड़े होने चाहिए। तो अभी हमने अगर ये हेड स्टैंड करने की कोशिश की तो ये तो गिरेगा। So just like what we did for toucan, हम क्या कर सकते हैं कि ये दोनों साइड में ना हम थोड़ा सा वेट लगाएंगे। अगेन we will use a bunch of paper pins like this, उसको खाली ऐसे बिठाना है। तो ना if ये दो अगर खड़े की, देखिए अपना हेड स्टैंड करने वाला जोकर आपके फिंगर पे खड़ा रह सकता है, ऐसे कुछ नहीं लगेगा। And see the greatest thing in experiments is that you never just do it the same way, that's the best part, right? तो अगर मैंने ये निकाला और यहाँ रखा, यहाँ लगाया, तो क्या होगा, will it still stand? तो ये मेरी उंगली पे नहीं होगा, but the center of your fulcrum will shift, right? तो मुझे कहाँ fulcrum करना पड़ेगा, देखिए यहाँ करना पड़ेगा, तो यहाँ रहेगा। अगर मुझे उसको पैर पे ही खड़ा करना है तो मुझे ये दोनों ये साइड लगाने पड़ेंगे। अगर मैंने ये साइड लगाए तो देखिए ये कहाँ खड़ा रहता है। हाँ, अगर मैंने दोनों ये साइड लगाए तो नाउ इट विल स्टैंड ऑन इट्स फीट। कभी हेड स्टैंड करेगा, कभी पैरों पे खड़ा रहेगा। दैट इज व्हाई यू नेवर स्टिक एनीथिंग, कुछ भी परमानेंट नहीं करना है। तो ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हाँ, हमने जब ये सिकाड़ा बनाया, आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग, सिकाड़ा इज एन इंसेक्ट लाइक अ क्रिकेट। हाँ, रातकेड़ा जिसे हम मराठी में बोलते हैं, वो रात को बहुत अपने घर में भी कभी कभी एक घुस के आता है और फिर कटर कटर रात भर करता रहता है। यू गो लुकिंग फॉर इट एंड इट्स अ लवली एक्चुअली इंसेक्ट जो हॉप भी करेगा, क्योंकि इसके रेयर लेग्स जो है दे आर वेरी पावरफुल, सो इट कैन एक्चुअली हॉप और कटर कटर आवाज भी करेगा। सिकाड़ा इज अ बिगर ब्रदर ऑफ रातकेड़ा and then it can make a huge noise. It's a bigger brother, so it has to make a greater noise. आपने कभी बम्बई के बोरीवली में एक संजय गांधी नेशनल पार्क है, that thing is actually infested with cicadas. These are वही जो इंसेक्ट हमने यहाँ बनाया वही इंसेक्ट है, इसमें बहुत 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 आवाज करते हैं, कर ऐसे करके। So let us make us kind of a toy that can make a cricket sound. पहले मैं आपको उसको क्रिकेट का आवाज करके दिखाती हूँ और फिर आपको बताती भी हूँ कैसे बनाना है। ये देखिए क्रिकेट का साउंड है, तो अब ये कैसे बनाना है देखिए। हाँ, क्या क्या लगता है इसको, कुछ नहीं लगता, सिर्फ जो लगता है इच्छा, बनाने की इच्छा होनी चाहिए एंड द फैंसी दैट यू वांट टू वर्क विथ योर हैंड्स। हाँ, इसके लिए क्या किया है देखिए, कुछ भी चिपकाया नहीं है। ये लिया है कोई भी एक क्राउन कैप, अगर ये नहीं भी है तो डोंट वरी, यू कैन यूज दिस ऑल्सो, रेगुलर प्लास्टिक। मुझे हमेशा मेटल का कैप अच्छा लगता है क्योंकि इट मेक्स अ नाइस साउंड, है टिंग टिंग, दिस इज टक टक, राइट, दैट्स अ डिफरेंट।
आप दोनों करके देखिए उसमें क्या है, और जो साउंड अच्छा लगे वो कैप रखिए। लेकिन इसमें आसान क्यों है, क्योंकि इसमें थोड़े रिजेस है, जिसके लिए रबर बैंड कैन स्टे पुट। If you want to use this cap instead, you will have to make 2 notches diagonally, जिसमें रबर बैंड बैठ सकते हैं। हाँ, तो क्या करना है, दूसरा फिर एक बटन लीजिए ऐसे। हाँ, बटन में क्या कर रहा है, जो 2 ऑपोजिट्स है ना, उसके एक साइड ऐसे धागा टाई किया है और उसमें पीरियोडिक नॉट्स किए, देखिए यहाँ। हाँ, छोटे छोटे नॉट्स है। यू डू इट एट एनी लेंथ, वो कुछ मेजर वगैरह करके करना नहीं है। और जो दूसरा एंड है ना, उसमें एक रबर बैंड किया है। क्या करा है, छोटे रबर बैंड को काटा है, then you pass it through this hole, weave it and then tie a knot like this. So now you have a thing like this. एक में रबर बैंड है और एक एंड में धागा है जिसमें गांठें लगी है। All you need to do is now take your cap और इसमें ऐसे diagonally ये बिठा देना है। That's it. अभी the moment you run your fingers on these knots, what happens is at every knot एक छोटा सा ब्रेक आता है अपने खींचने में, और फिर ये अपने ढक्कन पे अटकता है ऐसे टक टक टक। तो फॉर एवरी नॉट देयर इज टक टक टक। व्हाट यू कैन डू इज, सपोज आपको एक कोई सा ताल बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने 3 नॉट्स पास पास में करे और 3 नॉट्स दूर करे, तो इट विल बी टक टक टक, देन देयर विल बी नो साउंड एंड देयर विल बी अगेन टक 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 टक। So this is your tick ticking, fine. This is your cricket sound, and so this will be your cicada that will actually climb, and this is a toy that will make cricket sound. Since we are on sound, let us explore something out of sound as well. हाँ, तो ये देखिए आपके पास अगर एक straw है, so we can make a nice flute out of straw. इसके लिए हमने क्या करा, ये straw थोड़ा चपटा करा ऐसे, and then you cut it with a scissor. You cut 2 angles so that it looks like a pencil like this. कोई भी साउंड के लिए ना दो चीजें लगती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड मीडियम, मीडियम तो है ही ना, हवा तो हर जगह है। एंड द सेकंड थिंग यू नीड इज रीड दैट कैन वाइब्रेट एंड मेक साउंड। ये रीड की वजह से साउंड नहीं आता, रीड वाइब्रेट से एयर अराउंड इट, उसके वजह से आवाज आता है। सो दिस इज द रीड। इफ यू सी इट लाइक दिस, एक छोटा बेबी क्रोकोडाइल के जैसे माउथ है दैट कैन ओपन एंड क्लोज। What I'm going to do is this part I'm going to flatten it well, not with my nails because you don't want to curl it like this, right? Just fingers से चपटा करो, कट जो कट पोर्शन है वो पूरा मुंह में डालो और फूको। एकदम बढ़िया सी पिपानी हो जाती है। If you take a smaller straw, what will happen is, let's see, if I have a smaller straw like this and again I cut it like this, तो देखिए अगर इससे मैंने आवाज करी तो क्या होता है, दोनों साउंड में फर्क है ना। The longer the length of the straw, lower is the pitch, shorter is the straw, higher is the pitch. ये लेंथ और पिच का संबंध है, बिकॉज ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ कम है उतना श्रिल आवाज आता है। सो हम लोग जब भी औरतें और लड़कियां बोलती है तो पिच हायर है, right? And when boys or men speak, there is a lower pitch. So ये लड़कों के गले का आवाज है और ये लड़की के गले का आवाज है ना। You can also turn this flute into a simple flute by making holes in it. A normal flute would have 6 holes, लेकिन हम तो इसके एकदम छोटी सी फ्लूट है तो इसके लिए हमने सिर्फ 2 होल्स करे हैं। हाँ, just V-shaped notches like this. और let me see if I can play it like a flute. तो हम मुंह में डाल के फूकेंगे और पीरियडिकली ओपन और क्लोज करेंगे। है ना, छोटी सी फ्लूट हम घर में बना सकते हैं। Because what happens is when you make 2 holes, you get 3 air column lengths. एक जब भी हमने ये खोला तो ये एक इतना एयर कॉलम लेंथ हुआ, जब भी दूसरा होल खोला तो इतना हुआ, एंड देन जब भी दोनों बंद है so this natural hole is the 3rd air column length. So when you make 2 holes, you can make 3 pitches. That is why 7 सुरों की जो फ्लूट होती है उसमें 6 होल काफी होते हैं, क्योंकि 1 natural hole of the flute is used as the 7th air column length for the 7th pitch. अगर आपके पास स्ट्रॉ नहीं तो आप क्या करेंगे, तो साउंड का कुछ नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। यू विल ऑलवेज हैव एम्प्टी बॉटल्स, राइट? ट्राई ब्लोइंग इन द बॉटल्स। तो अगर हमने ऐसे लंबे बॉटल लिए तो देखिए, यू हैव टू पुट द बॉटल इन द स्वीट स्पॉट हियर। हाँ, ये जो डिंपल जैसे है उसमें, और फूकिए।
अगर छोटी है तो ट्राई और कलेक्टिंग ऑल काइंड्स ऑफ बॉटल्स और उसमें फूको और मजे करो। अगर ये बॉटल का सुर इस बॉटल के जैसा करना चाहिए तो क्या करना होगा आपको, सोचिए। दिस इज नॉट एन इंटरेक्टिव सेशन, सो आई जस्ट डोंट लाइक दिस वन बिट, लेकिन क्या करिए, अभी कोरोना की वजह से मजबूरी है, राइट। आई लाइक टू हैव सेशंस व्हेन आई हैव किड्स राइट इन फ्रंट ऑफ मी। मुझे आपकी आंख देखना बहुत अच्छा लगता है। अगर उसमें देन आई नो इफ यू आर लाइकिंग समथिंग, यू हैव सम क्वेश्चंस, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन नाउ अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं करना होगा। तो अगर आप हम बहुत सारे बातें कर दे रहे, दैट हाउ वेल कैन यू चेंज दिस बॉटल का पिच ऐसे ऊपर वाला। So there are many things you can do. The easiest thing to do is to fill it up with water so that इसका height इसके वजह से हो सके, क्योंकि we realize है कि जितना एयर कॉलम लेंथ है उसी पर पिच निर्भर है। तो अगर आपने इसका एयर कॉलम लेंथ यहाँ तक पानी भर के इसके जितना लाए तो होपफुली द पिच विल बी बॉल पार्क। शेप की वजह से कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन बॉल पार्क आपको थोड़ा मोटा मोटा इसके जैसे पिच सुनाई देगा। So try, if you have just one bottle, still you don't worry. Fill it with different amounts of water and see what kind of pitches it makes. अभी मेरे पास और थोड़ा वक्त है। जसिंता मैम, do I have 5 or 10 more minutes? Because I have many toys, you tell me and I'll stop. I would have at least 50 to show. I just showed 5 or 6 here. Yes, ma'am. More 5 minutes, ma'am. You can show. 5 more minutes? Okay. Yes. तो हम लोग अभी एक छोटा सा केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। हाँ, okay, so do you see I have 3 colored liquids here? हाँ, तो ये लिक्विड कैसे है? So I want you to, हम साइंस ही सब कुछ नहीं है, remember science and maths is not everything. Life is full of wonder, right? अगर आप कभी, I hope to meet you someday at our activity center, क्योंकि जहाँ हम बहुत खाली गप्पे मारते हैं, sometimes you just watch. आप ना आँख खुली रखो अपनी, ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सब एक्सपेरिमेंट्स लैब में नहीं होते, घर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। आप देख सकते हैं कितना अभी स्काई में क्या दिखता है, अभी नाइस क्लियर स्काई, राइट। हम लोग बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस देख सकते हैं, अभी मून का क्या फेज है वो देख सकते हैं, ब्यूटीफुल सनराइज यू कैन समटाइम्स सी फ्रॉम योर टेरेस, वो सब देखिए। तो और एक चीज देखने वाली है कि अगर आपके घर में बगीचा है और वहां फूल आ रहे हैं, तो उससे आप बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। This is the flower that I get in my garden. इसको क्या बोलते हैं मालूम है? गोकर्ण। अभी and it's just ubiquitous creeper, हर जगह आता है और बहुत सारे इसमें व्हाइट कलर भी होता है। And we have both in our house. This is the blue one. तो मैंने क्या किया? This is an experiment that shows you color changes in the kitchen. हाँ, और color changes not because of oxidation reduction reaction, but because of pH. हाँ, तो मैंने क्या किया, एंड व्हेन यू डू एक्सपेरिमेंट्स विद पीएच, केमिस्ट्री का बहुत बढ़िया लैब तो किचन ही है, राइट, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। तो हमने क्या किया, पीएच में चेंजेस देखने के लिए यू नीड 3 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एन एसिड, अ बेस एंड एन इंडिकेटर। इंडिकेटर इज समथिंग दैट विल चेंज कलर डिपेंडिंग ऑन आप उसमें एसिड डाल रहे हैं या बेस डाल रहे हैं। हाँ, तो इंडिकेटर मैंने क्या बनाया है, इंडिकेटर मैंने क्या बनाया है कि यहाँ मेरे पास एक गोकर्ण का फूल है और उसमें उसको मैंने गर्म पानी में डाला है। हाँ, और गर्म पानी डालकर I have strained it. I just kept it for 10 minutes and I strained it. I have this very beautiful color. ये आप बहुत बढ़िया पी सकते हैं। बीच में व्हाट्सएप में आ रहा था कि if you want to have some warm drink, colored drink is very good. And this is absolutely natural color. उसमें कुछ डाला नहीं। What will we use for acid and base? For acids in the kitchen are first of all lemon. Lemon is acidic. What else? Vinegar is acidic, जो हम Chinese cooking में use करते हैं. It's an acetic acid. ये citric है. And for base हम क्या यूज कर सकते हैं? बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, और ये मैंने सिर्फ वॉशिंग पाउडर लिया। समथिंग दैट यू विल फाइंड इन एवरी किचन। हम लोग कपड़े धोते हैं, राइट, तो कपड़े धोने वाला साबुन तो होता ही है। तो आप देखिए यहाँ ये बीच में जो है उसमें मैं कुछ डालने वाली नहीं। हाँ, और एक है, आप गौर से देखिए, यहाँ मैं एक में नींबू स्क्वीज करूंगी और एक में मैं ये वॉशिंग पाउडर डालूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी, if I squeeze a lemon, what happens is, you see the color change? It's a very pretty pink color, है ना? अभी इसमें हम थोड़ा
वॉशिंग पाउडर डालेंगे छोटे से स्पून से लेके। वॉशिंग पाउडर डाला और मैं यहाँ से थोड़ा स्टर करती हूँ। तो यू कैन सी यहाँ एक बढ़िया सा ऑलिव ग्रीन कलर हो गया। देखिए 3 कलर्स आपको मिल गए। व्हाट विल यू डू आउट ऑफ दिस? अगर ये कलर से आपको पेंट करना है तो राइट, यू कैन मेक योर ओन कलर्स एंड पेंट। सो दिस इज योर वन इंडिकेटर, गोकर्ण का। इफ यू हैव अ हिबिस्कस फ्लावर यू कैन डू दैट। कोई भी कलर्ड फ्लावर है, कोई भी कलर्ड फ्लावर, उसके पंखुड़ी आप ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के यू स्ट्रेन इट एंड देन यू यूज इट, कोई एसिड और बेस डाल के। हाँ, ये तो हल्दी है राइट, हल्दी भी इज अ गुड इंडिकेटर। सपोज आई यूज अ लिटिल बिट ऑफ लेमन हियर, यू कैन सी डजंट कलर चेंज कलर मच। ये आपको कंप्यूटर के कैमरा से तो नहीं दिखेगा, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का येलो हो जाता है, हल्का येलो। इफ आई यूज अ लिटिल बिट ऑफ वॉशिंग पाउडर, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर मैंने वॉशिंग पाउडर डाला तो ये रेड बनेगा, एकदम रेड। तो दिस वाज ओरिजिनल कलर एंड नाउ दिस इज रेड। क्या आपने कहाँ देखा होगा, कभी कभी आप कोई ग्रेवी वाली सब्जी खाएंगे और वो अगर सफेद कुर्ते पे गिर गई एंड इफ यू ट्राई वॉशिंग इट विद इमीडिएटली विद वॉशिंग पाउडर तो वो रेड हो जाती है ना। तो फर्स्ट थिंग टू डू इज टू वॉश इट विद सिंपल वार्म वाटर और बाद में इसको हम ये लगा सकते हैं। नहीं तो ये तो दाग जो पीला था वो लाल हो जाएगा, बिकॉज इन अल्कलाइन कंडीशंस द टर्मरिक कलर चेंजेस टू रेड। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हमारे किचन में रहते हैं। यूज एनी फ्लावर यूजेस, और फ्लावर्स भी ना इंडिस्क्रिमिनेटली नहीं कट करना है। क्या बोलते हैं ना, झाड़ को नमन करो, टेक जस्ट 1 फ्लावर दैट इज इनफ, और उस एक का एक्सट्रैक्ट बना के आप एसिड और बेस अब देखिए अभी के अभी मुझे 6 कलर मिल गए हैं ना विद गोकर्ण फ्लावर एंड दिस थिंग। सो आई कैन डू माय पेंटिंग यूजिंग द कलर्स दैट आई मेड इन माय ओन किचन। तो आप मुझे 2 मिनट है या मेरा टाइम खत्म हो गया? Shall we start? Yes, ma'am. You can continue. I can? Okay. Yes. एक दो 3 खिलौने और दिखा सकते हैं ना। मेरा तो टेबल है, if you can see the table is full of toys. That is how I like to have my table. अच्छा, तो अभी और एक देख सकते हैं ऑप्टिक्स का। हाँ, while in the kitchen and at home ना, हम घर में जो चीज मिलेगा, really I wish I could show you my table which is so pretty. Everything is from the kitchen and from the stuff that you can find around. तो जो भी कुछ किचन में मिले और आपके पास स्पून है, क्या कर सकते हैं? ऑप्टिक्स का इतना बढ़िया एक्सपेरिमेंट हम स्पून से देख सकते हैं। आप यहाँ देखिए आपका रिफ्लेक्शन कहाँ होता है। You know, it's a lovely mirror, right? एक बाजू में कॉन्केव मिरर है, एक बाजू में कॉन्वेक्स मिरर है। टेक अ नाइस क्लीन स्पून। तो यहाँ देखिए, और कभी कभी सीधा दिखता है, लंबा करेंगे तो उल्टा दिखता है। हाँ, आप उल्टा करिए, यहाँ कैसे दिखता है, यहाँ कैसे दिखता है। सी वेदर द इमेज इज इरेक्ट और इन्वर्टेड, सी वेदर इट इज डिमिनिश्ड और एनलार्ज्ड। कितने सारे चीज हम दे सकते हैं। हाँ, तो स्पून हो गया। ये आपके पास कभी कभी मसाजर मम्मी लेके आते हैं, पापा लेके आते हैं, हेड मसाजर है। इससे हम रेजोनेंस का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखिए, इफ आई प्लग ऑन द लॉन्ग वन, यहाँ लॉन्ग और शॉर्ट काइंड ऑफ वायर्स है। इफ आई पुल द लॉन्ग वन, सिर्फ द लॉन्ग वंस विल वाइब्रेट, नॉट द शॉर्ट वंस। हाँ, क्योंकि ये रेजोनेंस है ना। तो हमने अगर छोटा करा तो सिर्फ छोटे वाइब्रेट होते हैं, लंबे नहीं। Everything that you can get your hand could be used to explore something. Don't call it scientific experiment or anything. हमारे बीच में जो जिज्ञासा है ना, वो आंख में चमक हमेशा याद रखना कि just see what you can do. ये देखिए, हाँ, मेरे पास एक सिलेंडर कांच का ग्लास है। अगेन ये भी ऑप्टिक्स का है, हमने जैसे स्पून में देखा। और एक बार ऑप्टिक्स का एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट। आपको ये ग्लास दिख रहा है मेरे सामने का? कैन यू सी? या मुझे पीछे करना है? आई थिंक यू कैन सी। तो ये मेरा जो एरो है ना, ये ऑप्टिक्स से मैं उल्टा करके दिखाऊं। मोस्ट ऑफ द टाइम साइंस लुक्स लाइक मैजिक, बट देन देयर इज अमेजिंग अमाउंट ऑफ साइंस इन इट। रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो अभी ये देखिए, आप उल्टा हो गया, अरे करो तो सीधा हो गया। दिस इज अ लवली ऑप्टिक। क्या लगता है आपको? एक कार्ड पे खाली एरो ड्रॉ करना है, कोई भी चित्र ड्रॉ कर सकते हैं, और एक पानी का ग्लास बस, एंड यू हैव दिस वेरी ब्यूटीफुल ऑप्टिक्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना? तो ये भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे खिलौने हैं, और एक मैं आपको दिखा दूं यहाँ।
आपके पास अगर आइसक्रीम के स्टिक है तो लीवर लिंकेज के बहुत सुंदर से खिलौने हम बना सकते हैं। देखिए हाँ, ये है, आप यहाँ देखिए कैसे करना है। ये मैंने 3 आइसक्रीम के स्टिक्स लिए हैं, एक ऊपर पूरा है, नीचे है, और यहाँ हाफ हाफ स्टिक्स यूज करें। एंड यू जस्ट ड्रिल अ होल विद अ माइक्रो ड्रिल ऑलवेज हैव। आप ना खिलौने कभी नहीं खरीदना, बट इफ यू हैव मनी, अगर थोड़ा सा भी पैसा है तो अच्छे से टूल्स खरीदना है। छोटे छोटे ड्रिल्स है, छोटी हैक्सॉज है, ये सब आपके पास होना जरूरी है। अच्छे प्लायर्स होने चाहिए, कुछ वायर्स होने चाहिए। नेवर बाय टॉयज, मेक योर ओन टॉयज बट बाय गुड क्वालिटी टूल्स। तो अगर ये हमने क्या करा है, ऐसे होल्स करे हैं और यहाँ ऐसे वायर से जॉइंट बने, थिंग्स दैट कैन मूव। तो देखिए ये आपने पैकिंग बर्ड बनाया सिंपल। और ये बर्ड्स भी कौन से हैं जो हम हमेशा देखते हैं, ये हमने बनाया है तांबट, जिसको हम बोलते हैं कॉपर स्मिथ। कभी कभी हम कुक 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 ऐसे जो आवाज सुनते हैं, कॉपर स्मिथ बार्बेट, दिस इज द कॉपर स्मिथ बार्बेट। और ये व्हाइट है, चश्मे वाला बोलते हैं मराठी में हम इसको। तो देखिए एक चश्मे वाला पानी पिएगा, कभी बार्बेट पानी पिएगा, ऐसे कर सकते हैं। यही लीवर लिंकेज से हमने एक पिराना बनाया है जो सिंपल, देखिए ऐसे ही करे हैं, सिंपल माइक्रो ड्रिल से होल करा है और वायर घुसा के उसको जॉइंट्स करें। तो दिस इज, और यहाँ हमने एक पिराना यू नो इट्स अ फिश दैट इज वेरी कार्निवोरस, उसके बड़े से दांत होते हैं। एंड द पिराना कैन ईट, राइट, कटक कटक कटक, ऐसे कर सकते हैं। See, these are simple toys that you can make. हम छोटे छोटे कागज से देखिए ऐसे बटरफ्लाइज बनाते हैं, नो। Sometimes to make this motion, like converting straight line into angular motion, you will need so many gears and couplings. पर paper folding is such a beautiful art. देखिए एक सिर्फ स्क्वायर पेपर था जिससे हमने ये फ्लैपिंग बटरफ्लाई बनाया है। ये ऐसे कपलिंग्स हम स्ट्रॉ लेके यूज किए। इसको हम, ये पक्षी को हम बोलते हैं पट्टकादम्ब, या इसको बोलते हैं बार हेडेड गूस, दिस बार्स। ये हमने क्यों बनाया है, क्योंकि अभी अगर आप बिगवर्ड में या उजने गए कभी, तो ये बार हेडेड गूस मंगोलिया से अभी आए हैं पुणे में। सो इफ यू एवर स्टे, इफ यू आर द वंस हु आर स्टेइंग इन पुणे, गो टू बिगवर्ड और उजनी, और अभी आपको ये बार हेडेड गूस दिखेंगे। अभी फ्लेमिंगो भी आए हुए हैं, सी यू हैव अ फ्लाइंग फ्लेमिंगो लाइक दिस। और क्या लगा है इसमें, सिर्फ पेपर से हमने बर्ड ड्रॉ करा है। ये थोड़ा स्टिफ स्ट्रॉ है और ये थोड़ा पतला स्ट्रॉ है, ये लेके हमने ऐसा फ्लेमिंगो बनाया है, फ्लाइंग। हाँ, थोड़ा अगर और एक पेपर है तो ऐसे छोटे से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के खिलौने बना सकते हैं। सिर्फ बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे, यू नो द हाउस इज फुल ऑफ वंडरफुल थिंग्स एंड स्टफ। तो आप हमेशा अपने खिलौने बनाइए। एंड आई स्टॉप नाउ एंड आई लेट यू आस्क मी सम क्वेश्चंस इफ यू हैव। Thank you very much for listening to me patiently. I love making toys and I wish that you love to use your hands and I wish you can make many toys. अगर आपने खुद से दिमाग से बनाए तो हमें जरूर लिखना, we'll document it and acknowledge you for inventing that toy, और हम हमारे वेबसाइट पे वो जरूर डालेंगे। Thank you, ma'am, for such a wonderful demonstration. The toys which you showed, it really brought our childhood days back again. Really enjoyed it, ma'am. Now we come to the question and answer session. So I request Evelina ma'am to take over the session. Over to you, Evelina ma'am. Thank you, Annie. Good morning to one and all. Today we have a very interesting personality, Dr. Vidula Mahiskar ma'am, with us. I, Evelina John, first of all thank our guest for such an excellent demo of making toys with the use of simple things. Like ma'am said in the beginning of the session, that just watch and enjoy like a circus. So let me tell you, ma'am, we all thoroughly enjoyed it. It was really magical. And I'm sure our viewers must be eager to know more about it. So let's not waste time and begin with the question answer session. Now, our student Shreya Bhati would like to ask a question. Over to you, Shreya. Hi, Shreya. Hello. Am I audible? Absolutely. Loud and clear. Good morning, ma'am. Hello. Good I am morning. Shreya Bhati from 8th B. My question to you is, what are scientific toys? What is the science behind toys? Okay. Ma'am, just a minute. I will Hindi, translate. Hindi, yes. वैज्ञानिक खिलौने क्या है,
क्या आप खिलौनों के पीछे के विज्ञान की व्याख्या कर सकते हैं? Over to you, ma'am. खिलौने तो आपने अभी देखे, हाँ, there are many toys that you can make. और खिलौनों की व्याख्या क्या कर सकते हैं? See, everything has science behind everything. Our whole body is a beautiful science machine. जो आप देखे उसमें साइंस है. अगर आप यहाँ देखें तो जैसे मैंने कहा कपलिंग है ना, हमने स्ट्रेट लाइन मोशन है, मेरा हाथ सीधा हलता है, लेकिन जो पंख है, that is angular motion. So how can you convert one motion into another? How can you make different kinds of couplings? इसमें बहुत बढ़िया साइंस है. तो आपको अगर जब भी आप खिलौने बनाएंगे तो जो साइंस की आपको पता चलता है वो सबसे बढ़िया रहता है. यू कैन ऑलवेज मेक अ टॉय, और जब अभी आप रिफाइन करने को जाए इसमें, या इसमें अगर अच्छी उसको और बेहतर तरीके से चलाना चाहे, तो आपको उसके बिहाइंड के साइंस पता होनी जरूरी है. नॉट इन वर्ड्स बट जस्ट टू नो कि अगर ये मैंने शॉर्ट किया, जैसे हमने वो हेलीकॉप्टर बनाया है ना, इफ यू नो साइंस बिहाइंड इट कि जितना दैट मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस इज कंजर्व, तो आपको समझेगा कि मास तो ये दोनों हेलीकॉप्टर्स का सेम है, छोटे और लंबे ब्लेड वालों का. तो इसमें क्या फर्क है? ये रेडियस, घूमने वाले रेडियस का फर्क है. तो इफ मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस हैज टू बी कंजर्व, अगर आपको उसकी वेलोसिटी बढ़ानी है तो या मास या तो रेडियस कम करना पड़ेगा. तो मास तो हम कम नहीं कर सकते क्योंकि हमने सेम साइज का पेपर लिया है, तो रेडियस कम कर ले तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी. सो यू विल नो साइंस एंड फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट मेकिंग टॉय. साइंस विल कम टू यू व्हेन यू वांट टू मेक दैट टॉय वर्क बेटर. हाँ, हर टॉय में साइंस है, कुछ भी करो. Thank you, ma'am. This was indeed a very informative and detailed explanation of science beyond toys. Now, student Pranali Samal would like to ask our next question. Over to you, Pranali. Hi, Pranali. Hi, ma'am. Good morning. Good Myself, morning. Pranali Samal from Standard 8. My question to you is how to make scientific toys from waste materials. Okay, so most of the toys today are in Hindi. Yes, sir. वेस्ट पदार्थ से वैज्ञानिक खिलौने कैसे बनाए जाते हैं? हाँ. Over to Most you, of the ma'am. toys today, as I said, कि ऐसे मत करो. See, when you think of making a toy, the first thing that should come to your mind is ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे आसपास पड़ी है that I can use to make toys. Something that is waste, don't कचरा create मत करना. If you want to use a blowing bottle, don't buy a mineral water bottle. That would be very very unfortunate, right? तो लेकिन जो आप दिखे, first try to reuse whatever you get. अभी यार जो आप अभी मैं इसका एक बढ़िया एग्जांपल मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ. हाँ, ये मेरे पास एक पट्टी है. This is something that you have at home. ये क्या है? क्लॉथ पिन्स है. हाँ, तो ये भी अभी हमने एक वेबसाइट है वहां से सीखा है. This is a lovely मार्बल का एक बढ़िया सा क्या बोलते हैं रन है. तो यहाँ हमने कोई एंगल पे हमने हमारा एक रूलर पे ये लगाया है, और ये अगर हमने यहाँ से मार्बल छोड़ा तो देखिए क्या होता है. We just fold it like this. I hope you can see it. मार्बल रहता है, ऐसे 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 करके मार्बल आता है. हाँ, तो इसके हमने क्या यूज किया है? जो मटेरियल आपको घर में इतनी आसानी से मिलता है. एंड द अमाउंट ऑफ साइंस इज अमेजिंग. अगर है मैंने ऐसे करा तो मार्बल आएगा कि गिरेगा. अगर हमने बहुत लंबा करा तो मार्बल फटाफट गिर जाएगा. इफ यू वांट अ गुड बैलेंस दैट द मार्बल शुड कम स्लोली एंड इट शुड आल्सो नॉट फॉल अप, तो इसका एक परफेक्ट एंगल आपको मिलना चाहिए. तो ये देखिए ऐसे सिंपल चीजें हैं. तो वेस्ट चीजों से अगर आपको बनाना है तो आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं. 90% of the toys that we have documented are made out of either waste or something that you can very easily find. कभी कभी मैग्नेट्स वगैरह चीजें लानी पड़ती है, but very rarely. So look at our website arvindguptatoys.com and garwarebalbhavanpune.org. और ये दोनों साइट पे वेस्ट या एवरीडे मटेरियल यूज करके कैसे खिलौने बना सकते हैं वो लिखा है. Yes, I think all our viewers have understood how we can create the best out of waste. Now our next question is from Hit Oswal. Over to you, Hit. Yes, ma'am. Hello, Hit. Hello, ma'am. Good morning, ma'am. I am Hit Good Oswal from morning. Standard 8A
My question to you is, what are the different types of toys? How do you use toys as tools in the classroom? विभिन्न प्रकार के खिलौने कौन से हैं? आप कक्षा में खिलौने का उपयोग उपकरण के रूप में कैसे कर सकते हैं? ओके हम लोग ने अभी तो खिलौने देखे राइट कि जो हमने बनाए टुडे आई कुड शो यू अबाउट सम 10-15 टॉयज बट अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो 1000 टॉयज बनाने के डिटेल वीडियोस और फोटोग्राफ्स रखे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल खिलौने तो आप वहां जाके देख ही सकते हैं। एंड हाउ विल यू यूज इट? अगर जैसे मैंने ये बताया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम बहुत पढ़ते हैं है ना कि कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है इफ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड वेल। सपोज आपने अगर ये पट्टी लिया, ये सब निकाल दे, हाँ सपोज मैंने पट्टी, इफ यू आर स्टडिंग अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन अ क्लासरूम, आप पूछ रहे हैं कि क्लासरूम में हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर ये पट्टी को हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखा है 30 सेंटीमीटर की पट्टी है तो दिस विल काइंड ऑफ बैलेंस ऑन 15 सेंटीमीटर में। अगर मैंने यहाँ वजन लगाए तो ऐसे क्लिप्स लगाए तो विल इट स्टे पुट ऑन द, विल इट बैलेंस ऑन द सेम? ये नहीं, तो मुझे ये साइड में हिलाना पड़ेगा। तो आप फलक्रम और सिंपल मशीन्स के बारे में सोचते हो, कभी बैलेंस के बारे में सोचते हो, कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में सोचते हो, तभी अगर ये खिलौने आपने बनाए तो आपको बहुत अच्छे से वो सीखने को मिलेगा। ये दूसरा एक सिंपल खिलौना है जो पेपर फोल्ड करके हम इनर्शिया और मोमेंटम के बारे में कैसे सीख सकते हैं। देखो इसको हम टम्बलर बोलते हैं। ये कैसे फोल्ड करा है? सिंपल पेपर, देखिए ये स्क्वायर पेपर था ऐसे, ये मुझे जरा साइड में करने दो। हाँ ये सिंपल पेपर था जिसको मैंने पहले तो ये फोल्ड करा है, देन ऐसे 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 फोल्ड करके नीचे से हमने दो ऊपर करे। हाँ इसको टम्बलिंग टॉय बोलते हैं। आप वेबसाइट पे देखेंगे तो समझेगा। दिस पार्ट इज हेवी, सो द मोमेंट आई लीव दिस क्या करेगा कि ये कैसे भी आप उसको छोड़ो ये एक टम्बल लेके ही छोड़ेगा। देख सो व्हाट हैपेंस इज, इसको हमने जो थोड़ा सा एंगल दिया है उसकी वजह से ये नीचे आता है एंड व्हाइल इट इज कमिंग डाउन दिस पार्ट गेन सम मोमेंटम, है ना। आप मोमेंटम में सोचते हो पूरा एकदम न्यूटन्स लॉ पूरे छान मारे, तो दिस कुड बी यूज फॉर न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ सिखाने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। दूसरा सपोज ये खिलौना मैंने अभी दिखाया नहीं आपको, हम जो मैथ्स में कंजर्वेशन ऑफ एरिया बोलते हैं, हाँ वो ये हम कैसे सीख सकते हैं। देखो हाँ कि ये कोई भी स्क्वायर कार्डशीट है जो घर में मिला था, कार्डशीट मैंने उसका काटा है और ये घर में एक छोटा कपड़ा पड़ा था उसका बैग सिया है। इसका साइज तो आपको ढूंढना पड़ेगा। नाउ द पजल इज कि ये आपको इसमें बिठाना है। ये दोनों का एरिया सेम है लेकिन क्या आप ये बैग में ये स्क्वायर पूरा बिठा सकते हैं? तो जरूर बिठा सकते हैं। कैसे? इसका जो एक कंजर्वेशन ऑफ एरिया है, तो हमने अगर देखिए ये बैग ऐसा करा और उसमें ये साइड से डाला, देखिए ऐसे, और फिर साइड से करा ऐसे नीचे, तो देखिए ये बैग पूरा इसको बढ़िया से कवर करें। यही तो हम मैथ्स में सीखते हैं ना, कंजर्वेशन ऑफ एरिया वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे खिलौने यूज करके आप अच्छे से मैथ, साइंस, आर्ट सब सीख सकते हैं। Of course, hands-on toys and models is a great way for students to explore concepts from the curriculum in a fun way. Children will be much more interested in subjects like maths and science when they can quickly grasp fundamental concepts and ideas. Now, our student, Aditya Meher, would like to ask you our next question. Over to you, Aditya. Hello, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Aditya. I'm Aditya Meher from grade 6. And my question to you is, do scientific toys encourage the students' love for science? क्या वैज्ञानिक खिलौने छात्रों को विज्ञान के प्रति प्रेम को प्रोत्साहित करते हैं? Over to you, ma'am. हाँ, सी हाथ से काम करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। And see the thing is when you work with your hands, you will love it, right? क्योंकि हाथ से काम करना is empowering, वो एकदम meditation है। It gives you a sense of accomplishment that you made one small toy that if you get to work,
तो आपको जो आनंद आएगा ना, साइंस तो आपको अच्छा ही लगेगा, आपको जिंदगी में रस आ जाएगा। क्या साइंस सीखना तो बहुत दूर की बात है, यू शुड एंजॉय लिविंग एंड एंजॉय एंड लव लिविंग, लव नेचर। तो जो आप हाथ से काम करोगे ना, उसमें हर चीज के लिए आपको प्रेम आ जाएगा। साइंस और मैथ्स तो है ही, वो आपको अच्छे लगेंगे, बट यू विल लव ऑल सब्जेक्ट्स। यू विल लव हाउ टू यूज अ पेपर, जितना मटेरियल आप यूज करोगे, अगर आइसक्रीम की स्टिक है, अगर पेपर है, पेपर पिन है, हर चीज के लिए। लेकिन अभी ये देखो, ये सेफ्टी पिन से, ये सिंपल ये है स्टेपलर है। आप स्टेपलर, आपको स्टेपलर भी अच्छा लगेगा क्योंकि यू विल नो हाउ टू यूज इट। तो ये स्टेपलर यूज करके हमने ऐसे एक बुकमार्क बनाया है, वो एकदम डायनामिक बुकमार्क है, क्योंकि वो सब पूरा पाँव भी ऐसे हिलाता है। देखिए, एक सिंपल बुकमार्क है। हाँ, अगर आपने स्टेपलर यूज किया तो हम लोग ने स्नेक भी बनाया, देखिए एक रैटल स्नेक जैसा है। इसमें आप सिर्फ ओवल्स है दैट आर बीइंग जॉइंड बाय स्टेपल्स। तो देखिए एकदम कैसे हिलता है, मस्त, आपको जैसे हिलाना है वैसे हिलेगा। और यहाँ एक रैटल स्नेक है, इसलिए छोटा सा रैटल भी लगा है। सी यू शुड बी एबल टू लव लाइफ। अगर साइंस अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया, साइंस एन अमेजिंग सब्जेक्ट है, बट यू विल लव एवरी सब्जेक्ट। दैट इज व्हाट आई फील। वर्क विथ योर हैंड्स। Definitely, ma'am. Scientific toys promotes creativity among the children by forcing them to think of new and original ideas. Now, our student Garima Vaishnav would like to ask you our next question. Over to you, Garima. Hello, Garima. Hello, ma'am. Good morning. Lovely hair you have. Krishna from Standard 6A. My question to you is, what is the importance of toys in child development? बाल विकास में खिलौने का क्या महत्व है? Over to you, ma'am. गरिमा, that's a very serious question. खिलौने बनाने का हर किसी उम्र में महत्व है, नॉट ओनली इन चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। हाथ से काम करना, टू इंटीग्रेट हेड, हार्ट एंड हैंड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनीबॉडीज डेवलपमेंट। बच्चों के लिए तो है ही, है ना। अभी तो आप घर में हैं, कभी कभी आप बोर भी हो जाते हो, लेकिन कभी आप अपने हाथ से काम, कभी कभी हम बहुत सोचते हैं, नो, बहुत साइंटिफिक हो जाते हैं, कभी कभी हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, वी थिंक थ्रू आवर हार्ट। और लेकिन हाथ, इसके ये दोनों के बीच में हाथ आ गए ना, व्हेन यू ट्राई टू मेक थिंग्स, हमारा डेवलपमेंट ही बहुत अच्छा हो जाए, हम खुश हाथ बंदे हो जाते हैं ना। इट्स मोर इम्पोर्टेंट, इट इज ओके, यू नो, इंटेलिजेंट है, सब लोग है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं, एवरीबडी इज इंटेलिजेंट, राइट, इन सम वेज और अनदर। व्हाट वी नीड इज हैप्पी इंडिविजुअल्स। सो आप गरिमा, आप बहुत हंसा करो। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू बी हैप्पी एंड हेल्दी। आप तो भी देख ही रहे हो हेल्दी होने का क्या चीज है। व्हेन यू वर्क विथ योर हैंड्स, आपका कंसंट्रेशन अच्छा होता है। नो, डेवलपमेंट है क्या है, नो, यू डेवलप टू बी हैप्पी एंड यू नो प्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। प्रोडक्टिव इन द सेंस, हमारा कुछ सोसाइटी में, अपने आजू बाजू के लोगों के लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन हो। एंड द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन यू कैन गिव as a developed individual is to be a nice, happy working member of the family. जहां भी जाओ आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सको, है ना। कि अगर आपको हाथ से काम करना है, आपको किचन में काम करना आएगा, आपको टूल्स अच्छे से यूज करने आएंगे, wherever you go you will be able to contribute and you will be a happy individual then. हाँ, तो हर बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए हाथ से काम करना इज वेरी लिबरेटिंग एंड ग्रोथ का कारण है। Absolutely, ma'am. Toys are not simply objects that children use to entertain themselves with. It develops curiosity and creativity from a very young age and influences children to excel in scientific fields as adults. Thank you, ma'am, for the very interesting and enjoyable question and answer session. We thoroughly enjoyed it. Now, I hand over to our principal, Mrs. Jacinta Manuel, for her views on today's topic. Over to you, ma'am. Thank you, Evelina. Thank you, ma'am, for giving us more insight on scientific toys. And I'm sure through this webinar, our children will be more exposed to practical learning than theory-based process. I hope all our viewers enjoyed this webinar on fun-based learning through scientific toys, making process, thus enhancing their scientific approach. Thank you so much, ma'am. Once again, I hand over the mic to Annie Miss.
Thank you, Jacinta ma'am. Thank you, ma'am, for your inspiring views. Now, I hand over to Mrs. Annie to propose a vote of thanks. Over to you, Annie. Thank you, Evelina Miss. I, Annie Swamikan, on behalf of Acharya Shri Vijay Vallabh School, extend a very hearty vote of thanks to our Honorable Chief Guest, Dr. Vidula Maheskar ma'am, for today's webinar. Ma'am, you have blessed us with your presence and a lovely demonstration. You took out time from your busy schedule to make this day a nice one. Thank you for interesting and thought-provoking address. I also thank our chairman, Shri Subhash Parmar sir, who always motivates and guides us. A heartfelt thanks to the committee members, trust members, principals, teachers, and all our parents. As no program can become successful with a single person, so I extend my big thanks to our technical team for their tireless support and making this webinar successful with their contribution. Thank you all the enthusiastic viewers for joining us Facebook Live and appreciating and encouraging us with your valuable comments. I also thank Almighty who has showered abundant blessings on us. Thank you everyone and have a good day ahead. Acharya Shri Vijay Vallabh School, Pune, India. Thanks all our viewers for giving their overwhelming response. Thanks to our today's eminent speaker. A special thanks to our chairman, Shri Subhash Ji Parmar. A big thanks to our organizing team. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong every breath. Once again, thank you all. Thank you all the viewers for watching this webinar. We look forward seeing you next Sunday for yet another interesting webinar. Till then, stay tuned. Thank you.